So what is a photocathode? Photocathode is nothing but it's a negatively charged electrode when a photon of suitable frequency incident on the surface of the material, it eject an electron. So here in the second figure you can see quantum efficiency as a function of wavelength in the range of 100 nanometer to 1000 nanometer. So in visible range, silicon is having quantum efficiency is around 80%. So quantum efficiency is nothing but number of electron emitted per incident photon, like here. So suppose if 100 photon is falling on the surface of material and 40 electron is going out, so the quantum efficiency is, hello, can you, yeah, the quantum efficiency is around 40%. So in case of our interest is in the UV wavelength range, which is 100 nanometer to 200 nanometer. In UV wavelength range, the alkali halide material is very sensitive because of its band gap around 6 electron volt, and cesium iodide film is most efficient because of its high quantum efficiency and good stability. नहीं सही नहीं है आप slide हेलो, सुन पा रहे हैं आप हेलो, स्लाइड शेयर किए स्क्रीन शेयर करके स्लाइड शेयर करके आई ओके, slide is not coming. कैन यू, दिख रहा है? हेलो नहीं हेलो, कुछ नहीं दिख रहा सर। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं हाँ, सर, कई लोगों को दिख रहा है। सर दिख रहा है सर। ओके ओके सर ओके ओके सर ओके, प्रेजेंटिंग टाइम पे नहीं दिख रहा। आवाज आ रही है मेरी? साउंड क्लियर नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर, यस सर आवाज आ रही है सर आ रही है। नो सर आवाज क्लियर Okay. नहीं आ रहा आवाज क्लियर? हाँ, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। सर आवाज तो क्लियर आ हेलो? रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन स्क्रीन शेयर आपका सभी नहीं को- हुआ है, ठीक है। हाँ सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी, कुछ दिखाई नहीं दे। स्टार्ट करिए सर को पिन कर दो। हेलो, सभी स्टूडेंट लोग सब लोग अपना माइक्रोफोन बंद कर ले या माइक्रोफोन बंद करें सब लोग। हेलो, हेलो, यस सर यस सर यस सर यस अभी क्या आप स्क्रीन दिख रहा है? यस सर यस सर यस हाँ, सर विजुअल सर। आवाज अब दिख रहा है सर। यस सर इसके विजुअल पहले- सर विजुअल। okay, so photocathode is nothing but a negatively charged electrode when a photon of suitable frequency incident on the surface of material, it eject an electron. Okay, so here in second plot you can see quantum efficiency as a function of wavelength, so in which is shown in the wavelength range of 100 nanometer to 1000 nanometer. So silicon is having quantum efficiency is 80% in the visible spectral range, which is 300 nanometer to around 800 nanometer. So quantum efficiency is nothing but the number of ejected electron per incident photon. So suppose 100 photon is falling on the surface of material and 40 electron is going out. So quantum efficiency is around 40%. So in UV spectral range, the alkali halide material like cesium iodide, NaCl, potassium bromide are very efficient because of their band gap is around 6 electron volt. Okay, so among all the alkali halide materials, cesium iodide is most efficient because of their high quantum efficiency, good stability, and that's why it's widely used in many UV detecting devices like high energy physics detectors. So the photoemission is a three-step photoemission is a surface as well as bulk phenomena, which is the Einstein proved that it's a surface phenomena only, but in 1958 this theory was modified by William Spicer,
and instead of it's a only surface phenomena, it's a surface as well as bulk phenomena. So the photoemission is governed by a three-step photoemission model, which is given by William Spicer. So the first step of three-step is that when a beam of photon fall on the surface of material, some get absorbed by the material, some get reflected back, and after absorbing the photon, it excites the molecules electrons to the higher energy state. This is the second step. And in third step, these excited electron when move towards the surface of material, some get some came out from the material and some get absorbed. So those electron is having the energy greater than this vacuum level, they are getting they escape, and those electron having energy level lower than the vacuum level, they get trapped into the material. So there are three types of models. These these photoemission material can be operated in three basic modes, which is reflective mode, semi-transparent mode, and transmissive mode. In reflective mode, electrons are ejected in the same direction from where photon comes. So you have a substrate where you coat a photoemission material. When photon fall, it ejects an electron. This is called reflective mode. In semi-transparent mode, when electrons are ejected in the opposite direction and same direction from where photon comes, and in transmissive mode, electron eject in opposite direction from where photon comes. So what is the reflective and semi-transparent photocathode? When a thick photoemissive layer is coated on a reflective substrate like aluminum, stainless steel, then it's operate in reflective mode. Okay, and in case of semi-transparent photocathode, a thin, very thin, something like less than 100 nanometer photoemissive material is coated on the a transparent substrate like quartz, MgF2 windows. Okay, so I am showing you one of the application of CSI photocathode, which is quoted here is an example of a detector. This is a hadron blind detector used in Phoenix experiment at BNL, USA. So here on top of the detector, cesium iodide thin film is coated on the surface of the detector. So here is the zoom view, or you can say pictorial view. The blue one is the cesium iodide thin film coated on the detector. These are the three layers, cascading of three layers. So when a charged particle, primary particle pass through the detector environment, it ejects a Cherenkov photon. And when these photons fall on the surface of material due to photoelectric effect, it emits an electron. And those emitted electron, a single electron, get multiplied by the gas environment. So GEM means gaseous electron multiplier. So we keep this detector in some gas which generates some electron when we apply some potential between the detector. So these electron goes into the hole of this detector and get multiplied. So 1 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000, and that can be read out at the readout pad. So these are being used in ring image and Cherenkov based COMPASS experiment at CERN, the Large Hadron Collider based ELISE experiment at CERN, this relativistic heavy ion collider based Phoenix experiment at USA, which is shown in here, and GSI based HEDUS experiment. So सर कमेंट पढ़ hello. हाँ सर कमेंट पढ़ लीजिए ना Okay. कमेंट्स समझ नहीं आ रहा है. ओके, कहाँ समझ नहीं आ रहा है? हेलो, हिंदी में कुछ बोलिए ना सर हिंदी में कुछ बोलिए ना
अच्छा अच्छा, ओके, समझ नहीं आ रहा हिंदी है। में समझाइए सर। तो ये आप देख रहे हैं 3 लेयर्स है डिटेक्टर्स का, इसको बोलते हैं गैसियस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, और इनके बीच होल है, ये माइक्रोन ऑर्डर का होता है, मींस 400 माइक्रोन। ओके, इनके अपर सरफेस पे एक फोटो एमिसिव मटेरियल की कोटिंग है। जब एक फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन निकलता है ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मैं पहले बताया हूँ। समझ में आ रहा है? तो वो इस होल के थ्रू जाता है जहां पे हम बहुत ही हाई पोटेंशियल लगाए हुए हैं, समथिंग 25 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर द फील्ड। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? यस सर। हेलो, हाँ सर। ओके ओके। सो ये एक एग्जांपल है डिटेक्टर का, कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस डिटेक्टर के अपर सरफेस पे यूवी सेंसिटिव सीएसआई लेयर की कोटिंग है। ओके, सर स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा है। स्लाइड नहीं दिखाई दे, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? हेलो, अब्दुल रहीम प्रेजेंटिंग कर रही है सर। अब्दुल रहीम प्रेजेंट कर रहा है। तो सभी को नहीं दिख रहा है कि खाली आपको नहीं दिख रहा है? सर जी को नहीं दिख रहा है क्या? सभी को नहीं सर, दिख रहा है सभी सर। को नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा दे रहा सर। सर पिन करने पे दिख रहा है दिख रहा सर है? आपका। सर जी वाला अच्छा, पिन कर लो, दिखेगा। अभी दिख रहा है? सब लोग सर का पिन कर लो ना, किसी का प्रेजेंट होगा फिर भी। कर हेलो, लो। दिख रहा है? सर की आईडी पिन कर लो, सबको दिखेगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ सर नहीं दिख नहीं रहा है, दिख दिख रहा है। रहा है। किस, हेलो हेलो, दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा। ओके दिख रहा ओके, है सर। स्क्रीन शेयर से स्टार्टिंग से कीजिए, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। हाँ सर ओके शेयर स्टॉप, स्क्रीन शेयर सैंद्रा। स्टॉप करके फिर स्टार्ट कीजिए। ओके 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 ओके, ओके। करता हूँ मैं फिर से। स्टॉप शेयरिंग, ओके, एंड देन present now your entire screen, start। दिख रहा है? दिख रहा है? देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी तक नहीं आया। नो, अभी तक नो नहीं सर। आया सर। अभी यस तक सर दिख रहा है। हाँ आ गया दिख रहा है? सर हो गया। आ गया। ओके, तो यहाँ मैं आपको, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये आपको, ये मैं एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ सीएसआई फिल्म फोटो कैथोड का, जो कि एक एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ है। वो एक्सपेरिमेंट, वो डिटेक्टर यूएसए बीएनएल में है, जिसका नाम है हेड्रॉन ब्लाइंड डिटेक्टर। ये हेड्रॉन के लिए ब्लाइंड है, बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए वर्किंग है। सो एक व्हेन चार्ज पार्टिकल इस डिटेक्टर से जब पास होता है तो वो चेरेनको फोटॉन एमिट करता है, लाइक जैसे एक फास्ट मूविंग पार्टिकल ट्रेन आप देखते हैं कभी पास करता है तो पीछे से एक कोन बनाए हुए धूल का एक आप देखेंगे, आप फील करेंगे। उसी तरह जैसे एक बोट पास करता है समुद्र में, नदी में, तो आप देखेंगे पीछे एक कोन बनाता हुआ एक लहर आप देखेंगे। तो यही यहाँ पे भी वही है, एक जब चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है तो वो चेरेनको फोटॉन एमिट करता है, उसको चेरेनको फोटॉन बोलते हैं, कोन बनाए हुए दिखता है। ओके, तो वो जब चार्ज पार्टिकल पास हुआ तो वो कुछ फोटॉन एमिट किया, और वो फोटॉन जब सरफेस ऑफ मटेरियल पे इंसिडेंट हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो कि यूवी वेवलेंथ रेंज में पाया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके 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 ओके, वेरी गुड। तो वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, जो कि यहाँ पे एक होल है, अब छोटा सा माइक्रोन ऑर्डर का, समथिंग हाफ मिलीमीटर कह सकते हैं, बहुत ही छोटा होल है, और उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। समझिए कि उनका गैप आपका हाफ मिलीमीटर गैप है, इसका थिकनेस जो है इस डिटेक्टर का हाफ मिलीमीटर है, और उनके बीच वोल्टेज डिफरेंस करीब 1500 वोल्ट है। समझ रहे हैं? तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया समथिंग 25 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको बोला जाता है, जो टेक्निकल टर्म है। ओके, तो वो वहां पे चूंकि गैस इन्वॉल्वमेंट है, तो वो गैस मॉलिक्यूल से ये हमारा इलेक्ट्रॉन टकराया और फर्दर अनदर इलेक्ट्रॉन जनरेट किया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया। ओके, सो जो वो इलेक्ट्रॉन एक के बजाय आपको 100 मिल गया पहले होल से, फिर सेकेंड होल से वो 100 के बजाय 1000 मिला, फिर अगले नेक्स्ट होल से वो 10,000 मिल गया,
और जो वो इलेक्ट्रॉन इस रीड आउट पैड पे गिरेगा तो हम आप एक करंट देखेंगे कि एक करंट मिला है। ओके, तो उसको आप मेजर करते हैं, वो किस पैड पे गिरा है, यहाँ आप देखेंगे कहीं ग्रीन दिख रहा है, तो पता चलता है कि किस पोजीशन पे वो हिट किया है, मींस कहाँ वो जो फोटॉन है किस पर्टिकुलर पोजीशन पे गिरा, जहां से हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल गिरा, क्या एनर्जी थी और किस डायरेक्शन से आई। तो ये हमारा एम रहता है डिटेक्टर फिजिक्स का, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करना। तो वो पर्टिकुलर एक मीडियम बनाया जाता है जिस मीडियम में ये चरण को फोटॉन इमिट करे। ओके, तो जब न्यूक्लियस कोलिजन हुआ, जैसे आपने सुना होगा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, कुछ समय पहले ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो हमें मालूम है कि इस न्यूक्लियस कोलिजन के बाद ये पार्टिकल निकलेगा समथिंग, तो उसके लिए हम एक मीडियम तैयार करते हैं जहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह से सेट करते हैं जहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तब ऐसे कंडीशन में वो चरण को फोटॉन एमिट करता है, ठीक है, जो कि जिसका वेवलेंथ रेंज 100 to 200 नैनोमीटर है, जो कि मैंने अभी यहाँ आपको दिखाया था, आप यहाँ देख सकते हैं 100 to 200 नैनोमीटर। तो इसके लिए हमें वो सेंसिटिव मटेरियल भी चाहिए जहां पे ये फॉल करे तो इलेक्ट्रॉन निकाले। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी मटेरियल के लिए वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, उसका कुछ समथिंग वर्क फंक्शन होता है, उससे ज्यादा हो तभी वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का मटेरियल कई डिटेक्टर्स में यूज हो रहा है हाई एनर्जी फिजिक्स डिटेक्टर में, जैसे कि एक है रिच कंपास। तो रिंग इमेजिन चेरेनको बेस्ड कंपास एक्सपेरिमेंट, ये सर्न में है। एलएससी का आप नाम सुने होंगे, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये भी सर्न स्विट्जरलैंड में है। उसके अलावा ये आपका रिक बेस्ड ये हेड्रॉन ब्लाइंड डिटेक्टर है जो कि यूएसए में है। समझ में आ रहा है? सो हम आपको अब कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाएंगे जो हमने तैयार किया था अपने पीएचडी के दौरान। तो ये आप देख रहे हैं, दो स्टेनलेस स्टील चैम्बर है, एक मेन लोड लॉक चैम्बर है और एक अलग मेन इवापोरेशन चैम्बर है, एक लोड लॉक चैम्बर है। ये एक Screen is not visible. Hello, screen is not visible. Oh, for everyone? Yeah, Hello? screen save. हाँ सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। ओके, Screen है यार। दिख रहा है सर। दिख रहा है? दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है दिख रहा है। Particular guys, they are not stable free. सर Hello? स्क्रीन को सर स्टॉप शेयरिंग एंड फिर दोबारा से करना पड़ेगा। स्टॉप Okay, शेयरिंग okay. ओके दिख रहा है, ओके, फिर दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा होगा, फिर से मैं करता हूँ तब। ये बड़ा दिक्कत है। प्रेजेंट नाउ योर इंटायर स्क्रीन और प्रेजेंट नाउ विंडो शेयर। नहीं, स्क्रीन शेयर में जाइए, स्क्रीन दिख शेयर रहा है? में। हाँ हाँ, ये दिखा, अभी दिख रहा है? नहीं, हाँ आ रहा यस आ रहा है? आ रहा है? आ गया। ओके ओके, वेरी गुड आ चुका। वेरी गुड हाँ, वेरी गुड। तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाऊंगा। अब सब लोग म्यूट हो जाए। हाँ, अभी दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ आ गया, आ चुका। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो ये चैम्बर मैंने बीएचयू में तैयार किया था अपने पीएचडी के दौरान फॉर थिन फिल्म कोटिंग। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं दो स्टेनलेस स्टील चैम्बर है जो कि कनेक्टेड है एक गेट वाल्व के थ्रू। ओके, ये मेन इवापोरेशन चैम्बर है, ये लोड लॉक चैम्बर है। तो बिफोर कुछ भी करने से पहले हम इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास ये दो पंप हैं जिनको टर्बो मॉलिक्यूलर पंप बोलते हैं, जिसका पंपिंग स्पीड समथिंग लाइक 500 लीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। पंप जैसे कि आप नदी से पानी निकालने के लिए एक पंपिंग सेट लगा दिए, उसी तरह का ये चैम्बर के अंदर से हवा निकालने के लिए, अनवांटेड गैस को निकालने के लिए, ठीक है। तो हम उसके अंदर चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं -7 टॉर का लगभग। तो वैक्यूम क्या है? वैक्यूम कुछ नहीं, एक डाइल्यूटेड गैस है। मींस समझिए कि जनरली एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे समथिंग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में लगभग 10⁻18 गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप -7 टॉर पे गए तो वो गैस मॉलिक्यूल्स वो डाइल्यूट होके पर क्यूबिक सेंटीमीटर +18 से वो +12 पे आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा। तो क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद जिसपे हमें सब कोट करना है
मटेरियल, कोट करना मीन्स उसका फिल्म बनाना है। तो उसको पहले हम आफ्टर कायदे से क्लीन करते हैं अल्कोहल, एसीटोन, आईपीआर से। उसके बाद इस चैम्बर में रखते हैं, लोड लॉक चैम्बर में। फिर उसको कुछ हीट ट्रीटमेंट देते हैं उसके सरफेस पे, ताकि उसके बाद भी यदि कोई कंटामिनेशन है तो वो खत्म हो जाए। फिर उसको इस मैनिपुलेटर के थ्रू गेट वाल्व को ओपन करते हुए अंडर वैक्यूम हम लोड लॉक चैम्बर से मेन चैम्बर में ले जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसके बाद हम इसके अंदर, चैम्बर के अंदर रेजिडुअल गैस एनालाइजर के थ्रू ये देखते हैं कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। तो जब हमारा वाटर वेपर का अमाउंट आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ पंपिंग, when it goes down its minimum level, then we start coating by applying a high current up to something like 100 something 80 ampere to using a step down transformer. So step down transformer से कुछ तार हमारे यहाँ बॉटम पार्ट ऑफ चैम्बर में जुड़ा हुआ है, जो कि कनेक्टेड यहाँ पे है दिस टेंटलम बोर्ड से। ये इंटरनल पार्ट है। इस बोट में आप कुछ CSI पाउडर वगैरह रखते हैं। जब हाई करंट अप्लाई करते हैं तो जूल इफेक्ट के कारण ये सबस्ट्रेट आपका हीट होता है, और हीट होने के कारण मेल्ट, जिसमें जो मटेरियल है वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद इवोपरेट होता है। तो इससे करीब बोट से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर आपका सबस्ट्रेट है जिसपे कोट करना है। मान लीजिए एल्युमिनियम का सबस्ट्रेट है, ग्लास है, स्टेनलेस स्टील है, उस पर कोट होता है। ओके, तो कोट होने के बाद आप पंप को बंद कर दिए और इसको कूल डाउन होने दिए, और फिर गेट वाल्व खोलते हुए इस लोड लॉक चैम्बर से आप कोटेड सबस्ट्रेट को बाहर निकाल लीजिए। फिर उसको आप उसका क्वांटम एफिशिएंसी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है। जैसे कि आपने देखा कि सिलिकॉन के केस में ये 80% के आसपास था इनविजिबल रेंज। तो हमने जो सबस्ट्रेट मटेरियल कोट किया वो सेंसिटिव है यूवी स्पेक्ट्रल रेंज के लिए। ओके, तो वहां पे उसकी क्वांटम एफिशिएंसी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक एपरेटस है जहां पे हम क्वांटम एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि एक ड्यूटेरियम लाइट, यूवी लाइट एक ड्यूटेरियम लैंप से जनरेट होके इंट्रेंस स्लिट के थ्रू होते हुए ग्रेटिंग एलिमेंट पे गिरता है, जहां पे कि करीब 1200 लाइन पर सेंटीमीटर है और पर मिलीमीटर है। वो वहां से रिफ्लेक्ट होके एग्जिट स्लिट के थ्रू होते हुए दो पैरेलल मिरर हैं, वहां से पास करते हुए एक मोनोक्रोमेटिक एंड कोलिमेटेड बीम, एक बीम स्प्लिटर पे फॉल होता है, जो कि सिल्वर एल्युमिनियम कोटेड MgF2 विंडो है। इसमें से कुछ पोर्शन हमारा एक रेफरेंस PMT की तरफ जाता है, एक फोटो कैथोड पे जाता है, सम PMT और फोटो कैथोड। ओके, सो एक ये मॉनिटर करने के लिए, चूंकि जो आपका लाइट है हमेशा फ्लक्चुएट करता है, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म है, आप डीप में जाएंगे तो समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या है, ये फोटॉन हमारे मटेरियल पे गिर रहा है, वो बदले में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और उस इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा रहे हैं तो हमें करंट मिल रहा है। तो करंट क्या आपको मालूम ही होगा, करंट इज नथिंग बट ए फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज कैरियर है, जब वो फ्लो कर रहा है तो करंट मिल रहा है। तो हमारे पास एक पिको एमीटर है जो कि पिको रेंज में -12 रेंज के करंट को भी मेजर कर सकता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ओके, ये आपका आप पिक्टोरियल व्यू है उस मोनोक्रोमेटर का। ये इंडिया में फर्स्ट BHU में आया था 2000 समथिंग 12-13 में। अभी शायद 3-4 और है, तो आप BHU यदि विजिट करना चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये कुछ और एक्सपेरिमेंटल टूल्स है जो हमने यूज किया अपने सैंपल के एनालिसिस के लिए। तो आप देख सकते हैं ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेम सिस्टम है क्वांटा 200। दिस इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। ये AFM है, यहाँ पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर है परकिन एल्मर का। ये क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस करने के लिए XRD डिफ्रैक्टोमीटर है। और ये कुछ इन सीटू मेजरमेंट के लिए, इन सीटू वो होता है कि आप जहां सैंपल तैयार करें उसी इन्वायरमेंट में उसका प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे हैं, लाइक करंट, वोल्टेज, सरफेस, ये सब। तो ये कुछ ये यहाँ वाइजमान इंस्टीट्यूट इजराइल में है। तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था सैंपल को करेक्टराइज करने के लिए।
तो हम आपको अब कुछ रिजल्ट्स दिखाएंगे, फोटो इमिशन स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सो फोटो, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यूवी स्पेक्ट्रल रेंज में सीएसआई बहुत ही क्रूशियल है फॉर डिटेक्टर एप्लीकेशन। तो हमने कुछ डिफरेंट थिकनेस का कोट किया सीएसआई डिफरेंट मटेरियल पे। ओके, तो क्वांटम इफिशियंसी जैसे कि आपको हम पहले ही बताए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट फोटॉन, मीन्स इफ 100 फोटॉन आपके सरफेस पे गिर रहा है और बदले में कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मान लिया जाए 40 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो क्वांटम इफिशियंसी 40% हुई, जो कि इस इक्वेशन के थ्रू उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आप डिफरेंट थिकनेस उस पर कोट कर रहे हैं, मीन्स 10 नैनोमीटर का किए, 100 नैनोमीटर का किए, 500 नैनोमीटर का किए। तो आप देख रहे हैं कि 100 नैनोमीटर के बाद अराउंड 150 नैनोमीटर क्वांटम इफिशियंसी इज मोर और लेस सेम, अराउंड 40%। आप देख पा रहे होंगे, जो कि ये रिजल्ट हमारा ये पब्लिश किया गया है इस जर्नल में, आप देख सकते हैं वहां पे। तो ये है कि थिकनेस बढ़ाने के साथ क्वांटम इफिशियंसी इंक्रीज होती है सीएसआई की, बट एक सर्टेन थिकनेस के बाद वो सैचुरेट हो जाती है। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ ओके, वेरी गुड। तो ये आप, हाँ, ये देखिए कि हमने ये डिफरेंट थिकनेस का ये कोट, हेलो, क्या देख पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, दिख रहा है, हाँ, दिख हाँ। रहा है सर, दिख रहा है सर। हाँ हाँ, ओके। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ इसका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो हमने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया था, उसके द्वारा इसका इमेज लिया गया है डिफरेंट थिकनेस का सीएसआई कोट करके उस मशीन में। तो आप देख रहे हैं जब थिन लेयर है, बहुत ही थिन 4 नैनोमीटर का, तो सीएसआई मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्कैटर्ड है, सिंगल सिंगल आपको दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम थिकनेस बढ़ाए 20 नैनोमीटर पे गए, तो वो ग्रेन जो है इंटरकनेक्ट हो गए, लेकिन बहुत ही गैप है। ओके, स्केल आप देख सकते हैं, ये स्केल हमारा 500 नैनोमीटर का। फिर जब थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ाए 100 नैनोमीटर पे गए, तो आपको थोड़ा सा होल टाइप में पिन होल, ये तो यहाँ इमेज में बड़े दिख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे सुई के नोक जैसा होल है, आपको आंखों से नहीं दिखेगा। लेकिन और आप बहुत ज्यादा थिकर लेयर किए, 500 नैनोमीटर का किए, तो आप देखेंगे कि ये होल फ्री मॉर्फोलॉजी है, जो कि ये रिजल्ट हमारा पब्लिश हुआ न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन के एक जर्नल में, आप इसको देख सकते हैं वहां पे। और फिर उसके बाद हमने उसी सिस्टम से टीईएम से इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न लिया, जिसको बोलते हैं सिलेक्टेड एरिया डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो ये आप देख रहे हैं 4 नैनोमीटर का, 20, 100, 500। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ाते हैं, उसकी क्रिस्टलैनिटी बढ़ती है। क्रिस्टलैनिटी मीन्स जब आप एक शार्प ये डॉट देखते हैं, शार्प डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो वो उसका मतलब है कि फिल्म आपका बहुत ही क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन का ये मतलब है कि आपके जो एटम्स हैं बहुत ही अच्छे से अरेंज हैं। ओके, समझ में आ रहा है? जो कि ये रिजल्ट भी पब्लिश हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको एक जैसा कि पहले मोटिवेशन में दिखाया था कि अनम्यूट कीजिए सर सर। म्यूट हटा दी सर। हेलो, सर आपका माइक म्यूटेड है। हाँ सर, आ रहा है आवाज। तो अभी जस्ट म्यूटेड हुआ कि पहले से म्यूटेड था? अभी हुआ अभी सर। जस्ट हुआ। अभी सर कोई किया है, ओके ओके, आपको म्यूट किया है उसको। पता नहीं कैसे हो जा रहा, नहीं मालूम। तो म्यूट ये कर दे रहा सही है है। सर, कोई किया था अभी। ओके, पता नहीं, हमें नहीं मालूम कैसे हुआ, लेकिन अभी दिख रहा है। तो ये दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही है, और सब लोग म्यूट कर लें अब, ठीक है? तो ठीक, हाँ, तो यहाँ पे हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मेजर किया, डिफरेंट थिकनेस का कोट किया, फिर इसका ट्रांसपेरेंसी, एब्जॉर्बेंस ये देखा। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ा रहे हैं, एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है। एब्जॉर्बेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सरफेस एरिया कवरेज ज्यादा हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि थिनर फिल्म के लिए लगभग जब 10 नैनोमीटर था, तो एब्जॉर्बेंस करीब 0.5 था, और 500, 200 एंड अबव के लिए एब्जॉर्बेंस मोर और लेस सेम है, सैचुरेट कर गया है। और यहाँ से आप एनर्जी बैंड गैप निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं टॉक प्लॉट। ओके, इसके लिए अल्फा मींस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, अल्फा एच न्यू,
होल स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ एच न्यू। तो यहाँ से आप ये कट यहाँ मारेंगे, पहला जो एब्जॉर्प्शन उठ रहा है यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन स्लोप मारेंगे, तो कट के यहाँ दिख रहा है कि लगभग 5.4 के आसपास ये कट हो रहा है। तो आपका बैंड गैप जो दिख रहा है CSI का वो करीब 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। और ये सेंसिटिव है किस वेवलेंथ रेंज में? आप देख रहे हैं कि जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है 220 नैनोमीटर के आसपास है, 300 नैनोमीटर के पास ये बाद ये एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है। यहाँ से आप साफ देख पा रहे होंगे, राइट? दिख रहा है सभी को? तो ये सेंसिटिव है यूवी स्पेक्ट्रल रेंज के लिए। इतनी चीजें समझ में आई होगी। और यहाँ पे आप दो पीक देख रहे हैं, एक 100 समथिंग करीब 180 पे है और ये 207 पे है। तो फिर इसका हमने ट्रांसमिटेंस निकाला एब्जॉर्बेंस डेटा से ही। इस एब्जॉर्बेंस डेटा से ही हमने इसका ट्रांसमिटेंस निकाला यूजिंग दिस इक्वेशन T = एक्सपोनेंशियल -a। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ा रहे हैं, ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये CSI जो है CSI ट्रांसपेरेंट है, मींस ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा फोटोन। यदि वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमारा 220 नैनोमीटर से एबव है, ये मोर देन 80% ट्रांसपेरेंसी है, और ये एब्जॉर्ब हो रहा है यूवी स्पेक्ट्रल रेंज में, मींस 100 to 200 नैनोमीटर, जो कि आप साफ देख सकते हैं। और ये ट्रांसमिटेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग थिकनेस। सो आप ये देख रहे हैं जो हमारा करीब 30-35% के आसपास ट्रांसमिटेंस है 100 to 220, ये हमारा थिनर फिल्म के लिए 10 नैनोमीटर के लिए। और जैसे हम थिकर की तरफ मूव करते हैं ट्रांसपेरेंसी हमारी लेस देन 5% हो जाती है 200 to 500। ओके, और एक चीज आप और देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ा रहे हैं, ये लोअर वाला जो बोल्ड लाइन है वो 500 का है। ओके, जो सॉलिड लाइन है डॉटेड नहीं है वो 500 नैनोमीटर का है, आप ये देख रहे हैं। तो 500 नैनोमीटर के केस में आप देख रहे होंगे कि एक ऑसिलेटरी वेवी नेचर आ रहा है, करेक्ट? दिख रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है कि जो हम 500 नैनोमीटर के केस में जब आप कोट करते हैं लेयर बाय लेयर, तो हमारा कोटिंग बहुत ही यूनिफॉर्म है, वो एक स्लिट का काम करता है। जैसे यंग एक्सपेरिमेंट में आप देखते होंगे 2 स्लिट से वेव पास किया तो कुछ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनते हैं। यहाँ भी इस तरह का कुछ फिनोमिना हुआ है जिसके कारण आपको ये ऑसिलेटरी नेचर मिल रहा है, मींस फ्रिंजेस मिल रहे हैं। तो इस फ्रिंजेस से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको निकाला जाता है एक इन्वेलप प्लॉट से। ओके, तो जिसको स्वैनपोल मेथड बोलते हैं। तो हमने इन्वेलप प्लॉट निकाला, ये सब इक्वेशन है, डिटेल तो अभी बता नहीं सकते, उसके लिए समय चाहिए। तो ये रिजल्ट भी पब्लिश हुआ है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कुछ 300 to 900 मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस भी की XRD से। XRD आपको मालूम ही होगा, जो ये बताता है कि कौन सा मटेरियल है, क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है। तो यदि आपका पीक बहुत ही शार्प है, आप ये देख रहे हैं कि हमने एल्युमिनियम पे कोट करके CSI का XRD किया, CSI फिल्म का 500 नैनोमीटर का। तो डिफरेंट पीक आ रहे हैं, 110 प्लेन है, 200 प्लेन है, 211 है, 220 है, और ये कुछ एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम पे हमने कोट किया था। ओके, तो ये जो प्लेन है आप देख रहे हैं कुछ ये आपका इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ 2θ है। तो पहला पीक हमें 27 के आसपास मिला, नेक्स्ट कुछ 38 पे मिला, उसके बाद 44 2θ पे मिला। तो ये जो प्लेन है 110 200, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक तो हमारा जो फिल्म कोट हुआ है वो बहुत ही क्रिस्टलाइन है, और दूसरी चीज ये बॉडी सेंटर्ड BCC स्ट्रक्चर का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का है। क्योंकि आप इसको ऐड करेंगे 110 तो आपका इवन एक नंबर आएगा। समझ में आ रहा है? और इस प्लेन की सहायता से, HKL प्लेन की सहायता से आप इसका लैटिस कांस्टेंट निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, D = h² k² + l²। ओके, और ये देखने के लिए जब आप कोट कर रहे हैं सैंपल को, तो उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, किस प्लेन में ज्यादा ओरिएंट होके वो ग्रो हुआ है। तो ओरिएंटेशन देखने के लिए इसका टेक्सचर कोफिशिएंट निकालते हैं। तो ये देखा गया है कि 1 प्लेन के करस्पॉन्डिंग वो ज्यादा ओरिएंटेड था टेक्सचर कोफिशिएंट से। और क्रिस्टलाइट साइज, इसका क्रिस्टलाइट साइज भी निकाला जाता है। क्रिस्टलाइट साइज मींस पार्टिकल साइज जो कोट किया है उसका साइज क्या है। तो साइज करीब हमारा 55 नैनोमीटर के आसपास है, जो कि निकाला जाता है कोई XRD में शेरर फार्मूला है उसके द्वारा निकाला जाता है।
तो ये डिफरेंट टू थीटा पे आप देख रहे हैं चार कुछ ऐसे टू थीटा 4 एंगल्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 एंगल के करस्पॉन्डिंग आप लैटिस कांस्टेंट देख रहे हैं मोर और लेस सेम है, और साइज करीब आपका 50 नैनोमीटर के आसपास है। ओके, और भी चीजें हैं जो कि अभी यहाँ डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। और मोस्ट इंटेंस पीक आपको जो दिख रहा है 27 पे दिख रहा है, जो कि 110 है। फिर उस 500 नैनोमीटर फिल्म का हमने ये मॉर्फोलॉजी लिया और कुछ डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफिक मेजरमेंट TEM से भी किया। तो एक्सआरडी में भी आपको क्रिस्टलाइन नेचर दिख रहा था, टेम से भी दिख रहा है। उसके सपोर्ट के लिए कि क्या वो जो एक्सआरडी से मिल रहा है वो सही है, तो हमने टेम भी किया, तो वहां से भी पता चला कि हाँ ये क्रिस्टलाइन है और सेम प्लेन को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है और क्रिस्टलाइन है और बहुत ही अच्छे से कोट हुआ। यहाँ आप इसका देख रहे हैं ग्रेन साइज, दो चीजें होती है, ग्रेन साइज एक क्रिस्टलाइट साइज। तो ग्रेन साइज आप सभी ग्रेन को आप एक देख रहे हैं, एक ग्रेन बड़ा सा दिख रहा है, छोटे बड़े काफी दिख रहे हैं जिनका स्केल है 1 माइक्रोन। तो इनका जब आप एवरेज लेंगे और हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो करीब 300 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है। ओके, ये है एटॉमिक, ये जो इमेजेस हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के द्वारा लिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2D इमेज है एंड राइट हैंड साइड में 3D इमेज है, और इसका साइज भी करीब 300 नैनोमीटर के आसपास ही आ रहा है, 350, जो कि सपोर्ट कर रहा है टेम रिजल्ट को, जहां पे हमें 300 नैनोमीटर के आसपास मिला था। और ये AFM की सहायता से आप इसका रफनेस भी देख सकते हैं कि जो आप कोट किए हैं वो कितना स्मूथ है या रफ है। तो जो रफनेस है फिल्म की करीब 40 नैनोमीटर के आसपास है, जो कि ये रिजल्ट को भी पब्लिश किया गया है इंस्ट्रूमेंटेशन में। आप एक इंस्ट्रूमेंट है EDAX है, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे एनालिसिस, और एक और है XPS, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एलिमेंटल कंपोजिशन एनालिसिस करने के लिए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जब ये कोड, जब इसका एनालिसिस किया गया CSI फिल्म का, तो सीजियम और आयोडीन का आप रेशियो देखेंगे मोर और लेस सेम 1:1 है। तो ये कुछ आयनिक बॉन्ड बनाता है सीजियम और आयोडाइड, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सीजियम 2% है और आयोडीन 1% है। तो रेशियो 1:1 है। ओके, इसके बाद हम कुछ एजिंग दिखाएंगे। एजिंग मतलब कि वो हमारा जो हम फिल्म बनाए हैं वो डिटेक्टर में यूज हो रहा है, वो ठीक है, क्वांटम इफिशियंसी अच्छी है उसकी 30-40%, मॉर्फोलॉजी भी अच्छी है, थिकनेस बढ़ने के साथ वो क्रिस्टलाइन भी हो रहा है, अच्छा है सब कुछ। लेकिन क्या ये कितने समय तक चलेगा, क्योंकि ये सब जो डिटेक्टर्स बनते हैं करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि लंबे समय तक चले, लॉन्ग टर्म 10-20-25 साल तक चले, वो अपना रिजल्ट देता रहे। ऐसा ना हो कि 1-2 साल में ही वो खराब हो जाए। ये सब चीजें भी ये भी देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता है क्या है कि जब न्यूक्लियस कोलिजन हुआ, बहुत ही फोटॉन निकले और लगातार डिटेक्टर पे हिट कर रहे हैं, तो वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए ये स्टडी किया गया है, एजिंग स्टडी। तो ये हम फोटॉन बम्बार्डमेंट के द्वारा आपको दिखाएंगे। तो ये एक आप डिटेक्टर का फोटो देख रहे हैं अपर सरफेस का। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब एक चार्ज पार्टिकल पास किया, जैसा कि हमने बताया था कि वो चेरेनकोव फोटॉन इमिट करता है जब ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा होती है उस मीडियम में। उस मीडियम में क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इस तरह से सेट किया जाता है, जब ये पास करे तो फोटॉन इमिट करे। तो वो फोटॉन डिटेक्टर के सरफेस पे हिट किया और एक हमें रिंग टाइप में रिफ्लेक्टेड, क्योंकि हम मिरर को ऐसे जिस पे हिट किया एक कुछ मिरर है और इसका रिफ्लेक्टेड इमेज आपको एक रिंग जैसा देगा, उसका फोकल लेंथ फोकल पॉइंट ऐसा रखा जाता है कि ये हो। तो ये था कि हाइपोथेसिस पहले का कि जब फोटॉन हिट हुआ CSI पे तो वो फोटोलिसिस प्रोसेस के द्वारा सीजियम और आयोडीन में ब्रेक किया, सीजियम प्लस और आयोडीन में ब्रेक किया उसको, और आयोडीन वोलाटाइल नेचर होने के कारण वो एस्केप हो गया। तो आपके सरफेस पे क्या है, सीजियम रह जाएगा। ये हाइपोथेसिस था जिसको पेस्कोव ने दिया था। लेकिन जो हमारे स्टडी से है ये पता चला कि वो जो हाइपोथेसिस दिए थे पेस्कोव वो गलत है, क्योंकि जो एलिमेंटल कंपोजिशन हमने किया एनालिसिस EDAX और XPS, उससे ये होना चाहिए कि सीजियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, आयोडीन की कम, फोटोलिसिस प्रोसेस को यदि हम मानते हैं। लेकिन हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि जो डिग्रेड होता है सरफेस वो लेयर बाय लेयर होता है, मींस एक लेयर खत्म हुआ फिर दूसरा लेयर खत्म हुआ फिर तीसरा लेयर खत्म हुआ। ये नहीं है कि सिर्फ आयोडीन चला गया सीजियम रिच हो गया, रिच मतलब मात्रा ज्यादा है। तो फोटॉन बम्बार्डमेंट के द्वारा हमने क्वांटम इफिशियंसी देखा
कि ये हमारा रिलेटिव फोटो करंट एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन है। तो इनिशियली जब चार्ज एक्यूमुलेशन 0 था तो क्वांटम एफिशिएंसी अराउंड 40% थी इन अराउंड 150 नैनोमीटर, जो कि ऐसे डिक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग वेवलेंथ। और ये जब हमारा एक्यूमुलेशन चार्ज 20% के आसपास हुआ, ओके, रिलेटिव फोटो करंट जब 20% आया तो हमारा क्वांटम एफिशिएंसी कुछ डिक्रीज हो गया। और एट द एंड ऑफ फोटॉन बम्बार्डमेंट आफ्टर 5 डेज कंटिन्यूअस, तो फोटॉन इंटेंसिटी हमारी करीब 10 टू द पावर 11 फोटॉन पर मिलीमीटर स्क्वायर हम इस पे बम्बार्डमेंट कर रहे थे डिटेक्टर पे, ओके, जो कि इतना हमारा रियल एक्सपेरिमेंट में नहीं होता है, क्योंकि हम 25 साल तक तो टेस्ट नहीं कर सकते। ये होता है कि हम कुछ दिनों में ही टेस्ट कर लें, तो उतना ह्यूज नंबर ऑफ फोटॉन, उतनी इंटेंसिटी का अपने सैंपल पे CSI पे बम्बार्डमेंट कराते हैं, और ये देखते हैं कि इतने बम्बार्डमेंट के बाद वो कितना उसका क्वांटम एफिशिएंसी डिक्रीज कर रहा है। तो ये देखा गया कि ये बहुत ही ज्यादा डिक्रीज नहीं किया है, बहुत ही ज्यादा हम 5 दिन तक लगातार 10 टू द पावर 11 फोटॉन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड गिरा रहे हैं। तो करीब जब इसकी रिलेटिव फोटो करें 90% चला गया, तो क्वांटम एफिशिएंसी डिक्रीज होके हमारा करीब 5% तक आ गया। ओके, तो फोटॉन बम्बार्डमेंट के लिए जैसा कि आपको बताया था, ये ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था कि फोटॉन यहाँ ड्यूटेरियम लैंप से जनरेट हुआ, ग्रेटिंग एलिमेंट के थ्रू से जनरेट होके एग्जिट स्लिट से पास होते हुए हमारे सैंपल पे लगातार गिर रहा है यहाँ पे, और इसको इस तरह से फोकस किया गया है कि इतना फोटॉन गिरे। ओके, तो जो ये एनालिसिस है, एलिमेंटल एनालिसिस कंपोजिशन XPS, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा रेशियो है सीजियम और आयोडीन का आफ्टर दिस मच फोटॉन बम्बार्डमेंट, वो हमारा 1:1 ही है। ऐसा नहीं है कि सीजियम ज्यादा है आयोडीन कम है। तो जो हमारा पेस्कोव थ्योरी दिए थे कि ये फोटोलिसिस प्रोसेस से ये खराब होता है, जिसमें कि सीजियम और आयोडीन में ब्रेक हो जाता है, आयोडीन वोलाटाइल नेचर का है, वो गायब हो गया और सीजियम रह गया सरफेस पे। तो सीजियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट से पता चलता है कि सीजियम और आयोडीन आप देखेंगे कि रेशियो 1:1 है, 3.3 3.3। सो रेशियो देखिए 1 है। तो इसका ये मतलब है कि जो डिग्रेड होता है, खराब होता है, वो लेयर बाय लेयर होता है। वो फोटॉन लगातार पड़ा, वो एक लेयर खत्म, फिर दूसरे लेयर पे पड़ेगा, दूसरा लेयर खत्म, कुछ इस तरह से एजिंग होता है। और ये कुछ आफ्टर एजिंग आप देख रहे हैं कि सरफेस क्रैक हो गया है यहाँ पे, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज से और डिफरेंट टेक्निक से आप ये देख रहे हैं कि कैसे वो। और दूसरी चीज ये देख रहे हैं कि जो एजिंग होता है, जो कि साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो ग्रेन बाउंड्रीज होता है, व्हाइट व्हाइट आप देख रहे होंगे बाउंड्री पे, दिख रहा है? हेलो हेलो, यस सर। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। हाँ, तो आपने फोटॉन बम्बार्डमेंट से एजिंग देखा, अब आपको हम ह्यूमिडिटी से दिखाएंगे, क्योंकि ये सब जो सैंपल है एल्केली हैलाइड रेंज में आता है, जैसे NaCl हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, CSI, KBr, ये सब जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, एल्केली हैलाइड मटेरियल हैं। तो आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो ये है नमक, वो थोड़ा सा पिघल सा जाता है, ऐसा सही सा नहीं रहता, सभी ने आपने देखा होगा, राइट? तो CSI भी उसी ग्रुप का है, एल्कली और हैलाइड, मींस फर्स्ट एंड 7 ग्रुप का। ओके, पेरियोडिक टेबल में आप देखें तो, है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका ह्यूमिडिटी स्टडी भी किया जाए, ह्यूमिडिटी से ये कैसे खराब होता है। तो चूंकि ये तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, तो वाटर मॉलिक्यूल क्विकली एब्जॉर्ब करेगा। हाइग्रोस्कोपिक मींस वो मटेरियल जो कि वाटर वेपर को क्विकली एब्जॉर्ब करे, तो CSI हाइग्रोस्कोपिक है। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि हम जब फिल्म कोट किए हैं ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, या हम जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं डिटेक्टर को कोट करने के बाद, आप देख रहे हैं एक डिटेक्टर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होके जब सर में आया, आप ये बड़ा सा डिटेक्टर देख रहे हैं फेनिक्स का, फेनिक्स आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, जो हेड्रॉन ब्लाइंड डिटेक्टर पहले दिखाया था एप्लीकेशन पार्ट में, है ना, जो USA में है ना? तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये माउंट हो रहा है, तो वहां पे भी कुछ ह्यूमिडिटी रहेगा ही, तो वहां खराब हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे कोट करने के बाद, फिल्म बनाने के बाद, उसको कैसे हम ले जाएं, कितने देर तक हम उसको बाहर रख सकते हैं, ये स्टडी करना बहुत जरूरी है, कितना क्विकली हमको माउंट करना है डिटेक्टर को।
तो इसके लिए हमने ये किया कि एक CSI कोट किया किसी सबस्ट्रेट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने स्टेनलेस स्टील पे कोट किया। TM मेजरमेंट के लिए एक स्पेशल होता है कॉपर ग्रेड, उस पर कोट किया। तो इनिशियली आप देख रहे हैं कि जब कोट किया उसी समय हमने उसकी मॉर्फोलॉजी ली, तो ग्रेन साइज कुछ सिमिलर है और क्रिस्टलाइन नेचर है। फिर कुछ 2 घंटे के बाद किए तो उसकी क्रिस्टलाइनिटी थोड़ी सी कम हुई है, ग्रेन साइज भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और 24 घंटे बाद ये तीसरा इमेज दिख रहा है जो बड़ा सा है, आप ये देख रहे हैं कि ब्लड दिख रहा है। आपको पहले ही बताए थे, बहुत ही जब ये इंटेंस है तो क्रिस्टलाइन है, और जब ब्लड हो गया तो वो एमार्फस की तरफ ट्रेंड कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्रेन साइज भी बड़ा हो गया है और ये क्रिस्टलाइन न रह के एमार्फस हो गया है 24 घंटे में। तो ये इसका ये मतलब है कि, और ग्रेन साइज भी बढ़ रहा है आपका, कुछ 300 नैनोमीटर से ये 600 हुआ 2 घंटे में, और ये 1000 के आसपास चला गया 24 घंटे में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब कोट करने के बाद कहीं टेस्ट करना चाहते हैं, कहीं माउंट करना चाहते हैं, तो उसको तुरंत एक वैक्यूम या गैस मीडियम में, ना कि खुले जहाँ पे वाटर वेपर हो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रखना है, क्विकली वहां पे माउंट करना है। और विद इन 1 आवर 2 आवर आपके पास समय है, क्योंकि 2 आवर में उतना खराब नहीं हुआ जितना कि 24 घंटे में खराब हो गया है। जो कि ये रिजल्ट भी आप एक इंटरनेशनल जर्नल है न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन, वहां पब्लिश किया गया है, आप देख सकते हैं इसे। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियली उसकी क्वांटम इफिशियंसी तो आपको समझ में आ गई होगी, तो कुछ ज्यादा है, और आफ्टर 24 आवर्स उसकी क्वांटम इफिशियंसी कम हो गई है। कुछ समथिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं 40% है, और ये आपका 30% है एट 160 नैनोमीटर। ओके, सो दिस इज ओवरऑल समरी। तो क्वांटम इफिशियंसी सीजियम आयोडाइड की करीब 40% पाई गई 150 नैनोमीटर पे, है ना। और जो थिकर फिल्म है 500 नैनोमीटर, उसकी क्वांटम इफिशियंसी ज्यादा है, जो कि रिफ्लेक्टिव मोड में काम करता है। और थिनर फिल्म समथिंग लाइक 15 नैनोमीटर, उसकी क्वांटम इफिशियंसी कम है। एक साइड से ये पता चलता है कि हमारा मटेरियल CSI वो क्रिस्टलाइन नेचर का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसका जो एवरेज क्रिस्टलाइट साइज है करीब 50 नैनोमीटर के आसपास पाया गया है। और XPS IDEX जो एलिमेंटल कंपोजिशन एनालिसिस है वो बताता है कि जो रेशियो है सीजियम और आयोडीन का 1:1 है। मॉर्फोलॉजिकल रिजल्ट दिखाता है कि जो एवरेज ग्रेन साइज है अराउंड 300 नैनोमीटर है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ये दिखाती है कि जो हमारा मटेरियल किस रेंज में सेंसिटिव है, तो वो सेंसिटिव है करीब 100 to 220 नैनोमीटर, और जो उसका एनर्जी बैंड गैप है वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, थैंक यू। तो किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट साइड से तो लोग पूछ सकते हैं। हेलो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर अतुल पांडे सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स। अतुल सर। Hello, am I audible, yes, sir? yes, you are Yes, audible. Okay. Good afternoon to one and all. It is great honor and privilege for me to propose vote of thanks on this wonderful occasion of such a knowledgeable webinar on UV sensitive photocathode and its application in high energy physics for particle identifying detector. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion successful. First of all, I want to thank on behalf of myself and on behalf of our team of Government Polytechnic Buxar and Government Polytechnic Kaimur, and also on behalf of respected audience to Professor Satyaprakash, Honorable Principal of GP Buxar and GP Kaimur. Despite of his busy schedules, he has given time to this occasion. I am also express my heartful thanks to Dr. Triloki Pandit, Thank you, who sir. is a research scientist in International Center for Theoretical Physics, Italy. He has given a knowledgeable speech on his
high energy physics. Dr. Tiloki is a permanent resider of Banaras, UP, but he is contributing and lightening to whole world by his hard work and knowledge. I appreciate, sir, personally also. Thank you, Sir, Thank you. I am also nice. grateful to convener Dr. Rishikesh Pandey, lecturer physics in Government Polytechnic, Buxar, for his guidance and kindness to provide such a wonderful platform where we can share our views and increase our knowledge regarding high energy physics. I am also thankful to our technical team and institutional employees for their contribution in this webinar behind this screen or webinar. And last but not the least, I am also thankful to all our respected and wonderful audience for showing their interest in this webinar. Once again, I want to state thanks to all to our honorable principal, sir, speaker, sir, Dr. Tiloki Pandit, convener, sir, and audience, without whom this webinar objective cannot be achieved. I thank you for being with us today. Thank you so much, and have a nice day. Dr. Rishikesh, sir, would you like to brief or anything? If No, Thank you. if and now I will call Akshay sir, for both Yes, of sir. thanks. Yes, sir. Thank Yes, you so sir. much. Thank you so much, Dr. Triloki Pandit ji, for Thank giving you, your sir. precious time for us. Thank you, sir. Thank On you. this It's my topic, pleasure to present my yeah, work yeah. here. Yeah, it's a great platform to present my work. And if the audience, the students is having any doubt, they can ask me. You can share my email ID. They can ask any doubt if they have any time. They are welcome. Yeah. Thank you. Yes. Okay. Okay. WhatsApp number is also shared, so anyone well- can ask. Ask if they have any doubt, they can ask me immediately. You can share my WhatsApp number, so they can ask if they have any doubt later. They can ask me, and it's good to yeah. So for vote of thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks. Okay. So finally, I would like to conclude this session by thanking our principal Professor Satya Prakash sir and organizing committee and other technical staff like Pintu ji and Kesari ji and everyone and all the students, all of you. Now session is over. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। सब लोग अपना फीडबैक वाला फॉर्म भर दें, ऑल स्टूडेंट। अभी जो उसको सब लोग भर दें। ओके सर, थैंक यू। ये हमारे पहले स्पीकर थे जो कि इंडिया से बाहर के थे, अभी ये इटली में रह रहे हैं, हम पहले भी बताए हैं। तो मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है उनसे। हाँ एकदम, किसी को कोई भी डाउट है तो कुछ भी कोई कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई भी दिक्कत